हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। 21 जुलाई। जब पति अपने कार्यों को भली भांति निभाता है तो उसका श्रेय केवल उसे नहीं मिलता, अपितु उसकी पत्नी को भी उसका श्रेय प्राप्त होता है। बलाई कुपत्र 21 जुलाई 1969। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। To get that sword, it requires this qualification. Sadhu sadhyatatu sadhu sangha. Then there is taste. Now, how this taste is created, that is also explained in the next line. Shyat mahatsevaya. Mahatsevaya. Mahat means, I want to explain, the devotee, pure devotee, who has no other business than to serve Krishna. He is called Mahat. So, one has to engage himself in the service of the pure devotee. As soon as we serve a pure devotee, as it is spoken by Vishwanath Chakravarti Thakur, Jasya prasadad bhagavat prasadad. Jasya prasadad. If you satisfy a pure devotee by your service, then even there is some discrepancies, you get all these qualities. Shat Mahasevaya, Rajan. Sat Mahasevaya, Vipra. Vipra. All the audience members hearing Sutta Goswami, they are all Brahmins. Otherwise, how they will have got taste? Brahman, Vaishnava, they have taste. Not the Sudras. Because at the present moment there are Sudras, they are lacking taste. But our propaganda is, by some or other, even their Sudras, even their demons, we are creating the taste. That is our Krishna consciousness movement. Even there is no taste for Vasudeva Katha, Ruchi. Still, our process is so nice that we create the taste. Nobody was interested in Krishna consciousness, but there are thousands now. How? Because we are trying, or we have created the taste by this process. The process will be explained in the next verses very nicely, but the main principle is to hear. To hear, and that is also natural. If we are pure, then we shall be naturally inclined to hear. Just like a child. He is not taught, he is not educated, he has no knowledge, but he is also trying to hear. He is trying to get up and join us. It is natural, because in everyone's heart that Krishna bhakti or devotional service to Krishna is there, but it has been covered by material dirty things. So this chanting of Hare Krishna mantra is Cheta Darpana Marjanam, to cleanse that dirty things. The more you chant, more you hear, then the dirty things on the heart will be cleansed. And plus, if you engage yourself to carry out the orders, to satisfy a pure devotee, Chan Mahasevaya Vipra, Punna Tirtha Nisevanat, Punna, pious, these are pious activities. Tirtha, saintly person is called Tirtha. And Nisevana,
In other places also, same thing it is. Mahaseva dharamahur vimukti tamadharang jositang sangi sangam. Mahaseva, serving the pure devotee, is the path of liberation. Mahaseva dharam ahur vimukti tamadhyaram jositang sangi sangam. And if we become too much sexually inclined, then it is the path of darkness. Two paths are there. Mahaseva dharamahur vimukti tamadhyarang jositang sangi sangam. Not only to become personally very much sexually inclined, if you associate with a person who is sexually inclined, then he will fall down in the hell. Jositang sangi sangam. So, we should be very much careful about this. Married life sex is allowed, nothing else. That is sinful. Krishna says, dharma viruddha kama. Lust, which is sanctioned by religious principle. Sanction means, this is sanction. You can have sex life in married life, not otherwise. If you want more wife, not more husband, no, that is not allowed. More wife is allowed. A man can have more wives, but a woman cannot have more husband. Of course, in special cases, that is another. But generally, this is the rule. This is Vedic civilization. So, as far as possible, we shall try to avoid this illicit sex because that is very detrimental for advancing in the path of spiritual life. Therefore, our first principle is no illicit sex. Mahaseva dharamahur vimukti tamadhyaram jositang sangi sangam. So, things are difficult, at the same time very easy, provided we are determined that in this life I shall go back to home, back to Godhead. So these are the processes. So, Patman. The conditioned life of a living being is caused by his revolting against the Lord. That's all right. No time. Now chant, please. हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। ये पूरा सेक्शन जो है निष्काम कर्म योग, इसमें एक चीज पे फोकस करते हुए आ रहे हैं भगवान, समता, जिसको और कुछ श्लोकों में लिया जाएगा। मतलब ये देखिए संसार कैसा है, ये डुअलिटी से मतलब द्वंद्व से भरा हुआ है। सुख दुख, अच्छा बुरा, धूप छांव, सर्दी गर्मी, ये दो हमेशा साथ चलेंगे,
इसीलिए पूरा संसार में क्या है, द्वंद्व भरा हुआ है। भगवान बता रहे हैं कैसे इस द्वंद्व से हम परे जा सकते हैं, और वो क्या स्थान है। बहुत साल पहले, हमारे बचपन से भी पहले, एक बॉलीवुड का गाना प्रसिद्ध हुआ था कि आ लेके चलूं तुझे ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। कहां है ऐसा गगन? भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में ऐसा गगन है, और वो भगवान का घर, भगवान का धाम, भगवान का घर है, जो हमारा वास्तविक घर है। ये नहीं है हमारा वास्तविक स्थान। हम सोचते हैं ये मेरा घर है, बंबई में घर है, दिल्ली में घर है, अमेरिका में घर है। ये हमारा घर नहीं है। ये पूरा भौतिक संसार तो में एक जैसे बंधन है हमारे लिए। तो कौन सा गगन है जहां पे गम ना हो, आंसू ना हो, मतलब दुख नहीं है, बस प्रेम है। तो ये द्वंद्व से परे होगा गगन, वही तो होगा ना। ये पूरा संसार तो द्वंद्व से घिरा हुआ है। अभी द्वंद्व से परे कहां पहुंचेंगे? वैकुंठ धाम में, जो हमारा वास्तविक घर है। वहां पे कुछ भी इस संसार का नहीं है, सब चीज चिन्मय है, आध्यात्मिक है। और भगवान बता रहे हैं कि ऋषिगण, मुनिगण, बड़े बड़े भक्तगण, ये सब जो है भक्ति करके वहां पहुंच चुके हैं, और पहुंचा जा सकता है। अगर रास्ता नहीं होता, अगर जाया नहीं जा सकता वहां पे, तो भगवान फिर प्रचार ही नहीं करते ना। कुछ लोग कहते हैं कि जो यहाँ पे है वो यहीं रहेगा। अगर यहीं रहने के लिए हम आए हैं, तो फिर भगवान क्यों प्रचार करते हैं, क्यों अपने भक्तों को भेजते हैं? भगवान ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ अच्छे बन के इस दुनिया में रहें। भगवान चाहते हैं हम भक्त बने, उनकी सेवा करें, और वापस जो हमारा स्थान है वहां पे जाए। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में कहा बैक टू गॉड हेड। गॉड हेड मतलब भगवत धाम। बैक टू गॉड हेड, हमें कहा जाना है? हमें वापस भगवत धाम जाना है। हम यहाँ के हैं नहीं, यहां तो आए हैं, अब फंस गए। जैसे एक व्यक्ति वीजा लेके जाता है, किसी देश में जाता है, अब उसका वीजा खत्म हो गया, वहीं रह रहा है। कभी इधर छुप के, कभी उधर छुप के, कभी उधर का है नहीं वो। जब तक रहेगा वो तकलीफ में रहेगा, तो इसीलिए उसको वापस ही आना पड़ेगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे द्वंद्व के इस संसार में हमने बहुत दुख सुख देखा है। अब भगवान कह रहे हैं वापस आ जाओ। कैसे जा सकते हैं? भक्ति करके। आत्मा कृष्ण का अंश है। आत्मा का सनातन संबंध है कृष्ण के साथ, भगवान के साथ। तो उसी संबंध को पकड़ के, जैसे रस्सी होती है, बहुत मोटा रस्सी होती है, और आप उसको बांधते हैं एक बाल्टी के साथ और कुएं से पानी निकालते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो रस्सी ढीली पड़ जाती है, गीली भी होती है, फिर क्षीण हो जाता है। धीरे धीरे उसके धागे हैं, तो धागे ना टूटना चालू होते हैं, रस्सी एकदम पतला हो जाता है। तो भगवान की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से हमने वो रस्सी को, उस संबंध के उस डोर को बहुत पतला कर दिया है। लेकिन उसको काटा नहीं जा सकता, वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो संबंध सनातन है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो भगवान की भक्ति करके वो संबंध को पुनः स्थापित करेंगे, उसको मजबूत करेंगे उस रस्सी को, और उसी के द्वारा हम भगवान तक पहुंचेंगे। ये मनुष्य की अज्ञानता है कि वह सोचता है, मनुष्य या किसी भी जीव की, बट मनुष्य, बाकी जीव तो सब अपने कर्म अनुसार भुगत रहे हैं। तो मनुष्य ये अज्ञानता के कारण सोचता है कि ये मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा परिवार है। बल्कि यहाँ पे सब हमें दिया गया है,
जैसे एक कार होती है, कोई भी मशीन लीजिए, कार लेते, कार को असेंबल किया जाता है। कार कंपनी जरूरी नहीं है कि कार के टायर भी बनाए, कार के बैटरी भी बनाए और टायर के ट्यूब्स भी बनाए और उसके अलग अलग पार्ट्स बने, या उसमें एयर कंडीशन फिट होता है, या रेडियो फिट होता है, या ग्लास लगता है, या पेंट लगता है। एक कार कंपनी सब नहीं बनाती है, उसके वेंडर्स होते हैं। तो किसी के यहाँ से बैटरी आती है, किसी के यहाँ से इंजन आती है, किसी के यहाँ से पेंट आता है, कोई उसको बॉडी बना के देता है, कोई ग्लास सप्लाई करता है, कोई एयर कंडीशन सप्लाई करता है, कोई वायरिंग सप्लाई करता है। प्लांट में कंपनी उसको असेंबल करती है और ये कार एक यूनिट होता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब अलग अलग जगह से आके जुड़े एक परिवार कहते हैं। फिर घर बन गया, ईंट कहीं से आई, सीमेंट कहीं से आया, पेंट कहीं से आया, वायरिंग कहीं से आई, प्लम्बिंग कहीं से हुआ, ये घर बन गया, ऐसे ऑफिस बन गया, ऐसे सब आया है। इसको असेंबल किया गया। जिसका जितना काल है यानी समय है, वक्त है, वो उतना रहेगा। फिर धीरे धीरे वो पार्ट क्या, सभी पार्ट्स का अलग अलग एक्सपायरी होता है ना। कार में देखिए, इंजन का लाइफ अलग होगा, एयर कंडीशन का लाइफ अलग होगा, टायर ट्यूब का लाइफ अलग होगा, कोई जल्दी चला जाएगा, कोई बाद में जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। और अज्ञानता के कारण हम सोचते हैं कि ये परमानेंट है। वही परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी अरेंजमेंट है। तो ज्ञान क्या है कि टेम्पररी अरेंजमेंट में आ गए हैं, इसमें रहते हुए हम भक्ति करें और परमानेंट अरेंजमेंट तक पहुंचे, भगवान के धाम पहुंचे। इतना सरल है और आनंद है वहां पे। ये भगवान हमें बताना चाहते हैं कि भूतकाल में भी भक्त वहां पहुंचे हैं, इसलिए अर्जुन तुम भी पहुंचो। और अर्जुन के द्वारा हम सबको ये उपदेश दे रहे कि भक्ति करो और ये टेम्पररी अरेंजमेंट में हो, इसको तुरंत छोड़ना नहीं है, लेकिन इसमें रहते हुए हर जो वस्तु आपके पास है या हर जो संबंध आपका है किसी व्यक्ति के साथ, सबको कृष्ण की सेवा में लगाते हुए आप भगवान तक पहुंचे। हरे कृष्ण। Nitta